Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am Sadaf Naz, lecturer economics, Government Degree Girls College, Block 12, Gulistane Johar, and I am here with my lecture number 2 from the chapter Money and its Function and Value for first year commerce and second year arts students. In my previous lecture, we have already covered the definition and evolution of money, and now we will proceed towards the characteristics and function of money. As I already told you that chapter is a bit lengthy and important from examination point of view as well, so we will cover it in part of this chapter. So what we will cover in today's lecture, the main outline of today's lecture are the characteristics of good money and the function of money. Two important topics from short answer point of view as well and from long answer point of view as well. Okay, so what are the characteristics of good money and what are the functions of money? Money already I already explained that what is money. Now we will come towards the explanation of characteristics and function of the money. Okay, so characteristics of good money. Money is anything which is we use for transactions. Okay, so what are the characteristics of good money? Anything which we are using as money. I already told you that in barter system we don't have any money with us. Okay, but as the time passes, so we come towards different objects and then move towards the current modern money system. Okay, so what thing we should choose as money? What are the characteristics in the commodity which we are using as money? Like today, these days we are using currency notes and coins as money. So what characteristics of anything should possess which we are using as money? I am discussing here 10 characteristics of good money. In few books we have more characteristics as well, but I am discussing here only 10 important characteristics which are essential for a good money. These are the general acceptability, the portability, divisibility, storability, standardizability, durability, stability, recognizable, government support, and difficult to duplicate. These are the 10 important characteristics which anything should possess to be used as and accepted as a good money. Now I will explain these points one by one. Okay, so what these points means, I will explain it one by one. First one is general acceptability. Good money is accepted by all unless a person knows that the money which he accepts in exchange for his goods or services will be taken without any objection by others as well, he will not accept it. Nowadays, whatever we need, like dollar is the most common currency of these days. Anywhere in the world, if we go and we have to purchase anything, if we use dollar, it is easily acceptable by all countries because it is recognized by each and every person about each and every country in the world. Okay, so if we are using anything as money, as we have to make transactions with the help of that money, it should be acceptable by all. ये ना हो कि हम शॉप पे जाएं और जाके हमने करेंसी नोट दिया तो वो शॉपकीपर बोले कि व्हाट इज़ दिस, आई डोंट रिकॉग्नाइज इट. अगर हम जो है किसी ऐसे कंट्री का, किसी अफ्रीकन कंट्री का या किसी ऐसे कंट्री का अगर हम नोट उसको प्रोवाइड करें तो ही कैन से दैट इट इज़ नॉट रिकॉग्नाइज टू मी, इट इज़ सो आई विल नॉट एक्सेप्ट इट. सो एनीथिंग विच वी आर यूजिंग एज मनी शुड बी जनरली acceptable by each and every person, and the person should have confidence that whenever he use that money for transaction, it will accepted by all. So that is the first point. The second point is portability. Portability means good portable easily. The passenger must feel easy while taking money with them. It can easily move from one place to another. We know that in ancient times many of the king and rich person use horses and camels over which they put their money and treasures and move it from one place to another, which is very costly
very dangerous from security point of view as well. So anything which we are using and money using as money should be portable. Nowadays we are having all the money in our wallet. अब तो वॉलेट की भी ज़रूरत नहीं, बल्कि अब तो हमारे पास जो है वो सिंपली एक कार्ड होता है और कार्ड के ज़रिए जो हम सारी अपनी ट्रांजेक्शन्स कर लेते हैं और ऑनलाइन कर लेते हैं. आजकल कोरोना है तो मोस्टली लोग जो है वो क्या कर रहे हैं कि ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स कर रहे हैं. तो अगर हमारे पास अगर कॉइन्स भी होते हैं तो हम क्या कोशिश करते हैं कि उन कॉइन्स को जल्द अज जल्द जो है वो कन्वर्ट करवा लें, किस में, इन फॉर्म ऑफ करेंसी नोट्स, क्योंकि कॉइन्स दैट मेक आवर वॉलेट्स हैवी, आवर पॉकेट्स हैवी. तो इसलिए जो है whatever we are using as money should be portable, should easily move from one place to another, so that it will not be a burden for the carrier of that money. Then number 3 is standardizability. The good money material is of a standardized nature and quality of its material does not undergo great change. That should be some standard. We know that we have different currency notes. They have a standard size, a standard color, a standard value. ओके, दैट शुड नॉट चेंज. उसी की बेस पे तो हम उसको पहचानते हैं. अगर 1000 का नोट है, 1000 रुपये का नोट अगर ब्लू कलर का होता है, कलर साइज होता है, दैट इज़ अ लिटिल बिट बिगर. ओके, दैट इज़ अ लिटिल बिट बिगर एज़ कम्पेयर टू अदर नोट्स. ओके, सो इसी तरह से हमारे पास बाकी के जो हमारे पास करेंसी नोट्स हैं तो वो भी हमारे पास जो उन सब का एक स्टैंडर्ड साइज़ है, उन सब का जो है एक स्टैंडर्ड हमारे पास जो है वो क्या होता है, नोट साइज़ और डिज़ाइन होता है. दैट शुड बी स्टैंडर्ड सो दैट ईच एंड एवरी पर्सन कैन ईजली रिकॉग्नाइज इट दैट ही इज़ यूजिंग. हमारे यहाँ बहुत सारे इलिटरेट पर्सनस होते हैं जो कि नोट्स को उनके कलर्स से पहचानते हैं. उसके ऊपर जो लिखा हुआ देखा है, नोट की पहचान तो हर एक को ही होती है, लेकिन फिर भी बहुत सारे ऐसे पर्सनस होते हैं जो कि ईज़िली उस नोट को पहचान नहीं पाते हैं. तो वो क्या करते हैं कि उसको कलर्स की बेस पे, कि लाल वाला नोट जो वो 100 रुपये का है और जो है नीला नोट जो है वो हमारे पास 1000 रुपये का है, या जो ग्रीनिश सा नोट है वो हमारे पास 500 का है. तो दैट इज़ द थिंग कि लोग जो हैं वो उसको रिकॉग्नाइज़ करते हैं ड्यू टू इट्स स्टैंडर्ड साइज, its standard color and its standard quality. Okay, so that is another important quality. Next one is durability. Money should be durable. The money must not lose its value with the passage of time. Anything which we are using as money should be durable. उसकी क्वालिटी जो है वो क्या होनी चाहिए, उसमें चेंज नहीं आना चाहिए, उसकी क्वालिटी में चेंज नहीं आना चाहिए. दैट शुड नॉट बी पेरिशेबल. दैट शुड नॉट बी समथिंग which is easily lose its value with passage of time. ठीक है, पायदार होना चाहिए. टाइम के साथ साथ उसमें जो है वो बहुत ज़्यादा जो है उसकी क्वालिटी में चेंज नहीं आना चाहिए. जो कुछ भी हम यूज़ कर रहे होते हैं मनी के तौर पे, तो देखें अब हमारे पास जैसे करेंसी नोट है, अक्सर होता है कि कभी पॉकेट में रह गया और वॉश हो गया, तो वो जो है इतनी आसानी से जो है वो अगर हमें पता चल जाए तो हम उसको सुखा के और दोबारा यूज़ कर सकते हैं. अगर उसकी ड्यूरेबिलिटी नहीं हो, अगर वो इतना पायदार ना हो, तो वो क्या हो कि 2 हाथों में जाने के बाद, क्योंकि मनी टेक अ लॉट ऑफ टर्न्स, बहुत ज़्यादा टर्न्स होती हैं उसकी, एक हाथ से दूसरे हाथ, तीसरे हाथ, चौथे हाथ में जाता है. तो वो अगर मटेरियल ड्यूरेबल नहीं होगा, हम सिंपल पेपर करेंसी 2 से 4 हाथों में जाती है. सिंपल अगर हम पेपर को अगर हम यूज़ करें तो वो जो क्या होता है कि वो इतना ज़्यादा जो है वो पायदार नहीं होता. जो करेंसी नोट होता है दैट इज़ मेड विद अ स्पेशल क्वालिटी ऑफ पेपर which includes some sort of thread as well in it. Okay, so उसकी वजह से क्या होता है कि उसकी ड्यूरेबिलिटी बढ़ जाती है, क्योंकि जब वो हैंड टू हैंड मूव करता है, हर तरह के लोगों के हाथों में जाता है. कुछ जो है वो उसको गीले हाथों से भी पकड़ते हैं और कुछ जो उनको जो है वो यानी मिस हैंडलिंग भी करते हैं उसकी. तो वो चीज़ें जो है वो क्या है कि वो चीज़ जो है उस नोट को ख़राब नहीं होने देती. सो एनीथिंग विच वी आर यूजिंग एज मनी शुड बी ड्यूरेबल. बार्टर सिस्टम में अगर लोग जो है वो फूड आइटम्स को यूज़ करते थे, फ़िश को अगर यूज़ करें, चिकन को यूज़ करें, तो दीज आर पेरिशेबल, जिनकी लाइफ इतनी ज़्यादा लंबी नहीं होती, तो वो क्या होता है वो ड्यूरेबल नहीं थी. तो आज के दौर में हमारी ये कोशिश होती है, अब जो प्लास्टिक मनी है, जो हमारा क्रेडिट कार्ड है, दैट इज़ क्वाइट ड्यूरेबल. उसको जो आप कुछ भी कर लें वो इतनी आसानी से ख़राब नहीं होता. तो दैट इज़ अनदर इम्पॉर्टेंट क्वालिटी ऑफ मनी. ओके, नेक्स्ट इज़ स्टेबिलिटी. Money must have a stable value because it serves as a standard for measuring the value of other things. A change in its value brings change in prices of goods and services. Stability.
अगर आप लोग थोड़ा सा भी न्यूज़ से इन टच रहते हैं तो यू विल मस्ट नो दैट आजकल आता है कि डॉलर की प्राइस ऊपर हो गई, डॉलर की प्राइस गिर गई, डॉलर 164 पे पहुंच गया, डॉलर 165 पे पहुंच गया, डॉलर 150 पे पहुंच गया। ये क्या है, हमारी करेंसी रिलेट करती है डॉलर के साथ सबसे ज़्यादा। हम उसकी जो वैल्यू जो एग्जामिन करते हैं वो ऑन द बेसिस ऑफ डॉलर करते हैं, डॉलर के साथ हमारी करेंसी जो है वो रिलेट करती है, ठीक है। डॉलर की प्राइसेस ऊपर नीचे होती है, दैट मीन्स कि हमारी करेंसी की वैल्यू अप डाउन होती है। अभी अगर आजकल के टाइम में अगर जो हमारी करेंसी मुस्तकिल अगर अप डाउन हो रही थी, डॉलर की प्राइसेस अभी लास्ट फ्यू मंथ्स में जो वो बहुत तेज़ी से अप डाउन हो रही थी, दैट विल मेक अ बिग डिफरेंस फॉर आवर लोकल ट्रांजेक्शन्स। हमारी चीज़ों की प्राइसेस जो जाहिर सी बात है जब डॉलर की टर्म्स में, तो जितने भी इंपोर्टेड आइटम्स हैं उनकी प्राइसेस जो वो क्या होंगी, वो डेफिनेटली वो चेंज होंगी, ठीक है। जो हम इंपोर्ट करते हैं उसकी जो पेमेंट होती है वो जो हमें इन टर्म्स ऑफ डॉलर करनी होती है, तो वो जो वो जाहिर सी बात है अगर डॉलर की प्राइस अप डाउन होगी तो हमारी करेंसी की वैल्यू पे फ़र्क पड़ेगा। तो अगर हमारी कोई भी करेंसी है उसकी वैल्यू, पाकिस्तानी रुपए की बात नहीं कर रही हूँ, एनीवेयर इन द वर्ल्ड अगर उस करेंसी की वैल्यू स्टेबल नहीं है तो दैट विल मेक अ लॉट ऑफ इफ़ेक्ट ऑन द लोकल मार्केट। और चीज़ें जो सारी की सारी जो उनकी प्राइसेस हैं वो क्या होती हैं, उनके ऊपर इफ़ेक्ट पड़ता है, आपकी अपनी लोकल मार्केट स्टेबल नहीं रहती। सो दैट्स वाई द वैल्यू ऑफ मनी should must stable, anything which we are using as money should must be have some stable value, it should not fluctuate many times, okay. Next is divisibility. The money is always divisible without losing its value into smaller units for making the smaller payments. जो भी चीज़ हम मनी के तौर पे यूज़ कर रहे हैं दैट शुड ईजिली डिविजिबल इनटू स्मॉलर यूनिट्स, ठीक है। द स्मॉलेस्ट यूनिट्स नाउ अ डेज वी हैव इन टर्म्स ऑफ पाकिस्तानी करेंसी इज़ 1 रुपी कॉइन एंड द लार्जेस्ट वैल्यू करेंसी नोट इज़ ऑफ 5000, ठीक है। अब अगर आप कहीं भी ग्रॉसरी के लिए जाते हैं, कहीं आप डाइन इन के लिए जाते हैं, टेक अवे के लिए जाते हैं, इफ़ द बिल इज़ 550 रुपीज़ और 1050 रुपीज़ एंड इस तरह से अगर बना, लेट सपोज, ठीक है, तो आपके पास 1000 का नोट भी है, आपके पास 500 का नोट भी है, आपके पास 50 रुपीज़ का नोट भी है, सो यू कैन डू एग्जैक्ट पेमेंट वट एवर इज़ रिक्वायर्ड, ठीक है ना। करेंसी आपकी डिविजिबल है इसलिए ये चीज़ आसान है। अब तो खैर हमारे पास मैक्सिमम नोट जो वो 1 रुपी का हो गया, अदरवाइज़ पहले हमारे पास 25 पैसा, 50 पैसा, 5 पैसा, 10 पैसे के कॉइन्स भी थे, जिसकी बेस पे हम 90 पैसा, 50 पैसा, 70 पैसा इस तरह से चेंज को भी जो हम क्या करते थे कि हम जो पेमेंट पॉसिबल थी हमारे लिए। अब जो है क्या है कि अब हमारे पास जो है हाईएस्ट वैल्यू नोट जो है वो 1 रुपी है। जितना हाईएस्ट वैल्यू करेंसी नोट होता जाता है उतना उस इकोनॉमी में इन्फ्लेशन रेट जो है वो क्या होता चला जाता है, बढ़ता चला जाता है। जाहिर सी बात है जब उससे यानी अब कोई भी चीज़ आपकी इकोनॉमी में 1 रुपये से कम की नहीं होगी, नहीं तो पहले जो है 25 पैसे की भी टॉफ़ीज़ और इस तरह की चीज़ें आ जाती थी पहले ज़माने में। बहुत पहले ज़माने की बात नहीं कर रही हूँ, कुछ अरसा पहले तक की बात करूँ, लेकिन अब हमारे पास मिनिमम अमाउंट जो है वो क्या है, वो 1 रुपये है। 1 रुपये से कम में कोई भी चीज़ आपके पास जो है वो आपकी इकोनॉमी में मौजूद नहीं है। So whatever thing we are using as money should be divisible into smaller units, so that will make our payment more easier. Okay, next is storability. Another requisite of the good money material is that it should be storable without depreciation. If the commodity chosen as money is perishable, then it cannot serve as a good money. Same thing कि उसकी वैल्यू स्टोर होनी चाहिए, उसमें टाइम के साथ साथ चेंज नहीं आना चाहिए, पेरिशेबल कमोडिटी नहीं होनी चाहिए, टाइम के साथ वो डिटोरिएट नहीं होनी चाहिए उसकी वैल्यू, बल्कि वो क्या होना चाहिए, स्टोरेबल होना चाहिए। 100 रुपये का नोट अगर आज आप अपने वॉलेट में रखते हैं, अपने कहीं जो है वो मनी बॉक्स में अगर रख देते हैं, अगर आप वो उसको 5 साल बाद भी निकालेंगे तो वो 100 रुपीज़ नोट ही रहेगा। उसकी वैल्यू टाइम के साथ साथ इन्फ्लेशन की वजह से कम हो जाएगी कि अगर आप अभी उससे जो है 10 चीज़ें ख़रीद सकते हैं तो हो सकता है कि 5 साल बाद आप उससे सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ ख़रीद सकते हो, बट स्टिल वो 100 रुपीज़ नोट ही रहेगा, उस पर फ़र्क नहीं पड़ेगा, उसकी वैल्यू जो है वो वही की वही रहेगी। हाँ, परचेजिंग पावर उसकी जो है वो क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट इज़ रिकॉग्नाइजेबल, दैट इज़ most similar to general acceptability, that is good money is recognized by either sight or touch. The general public is familiar with the various kinds of notes. जो भी करेंसी नोट हमारे पास है उसका डिज़ाइन और उसके जो वैल्यू है वो लोगों को रिकॉग्नाइज्ड होनी चाहिए, लोग उसको आसानी से पहचान सकें, उनको पता हो कि 500 का 5000 रुपीज़ का नोट और 20 रुपीज़ का नोट बोथ आर ऑफ मच सिमिलर कलर्स बट अ लिटिल बिट डिफरेंस, ठीक है। एक थोड़ा सा ऑरेंजिश
ब्राउन है और एक थोड़ा सा ब्राउनिश पे है, दोनों के साइज़ में थोड़ा सा डिफरेंस है, तो दैट शुड नॉट मेक अ मिक्स बिटवीन दीज टू नोट्स, ठीक है ना। तो वो ईजिली जो है वो रिकॉग्नाइज़ कर सकें, ऐसा होना चाहिए, इतना ज़्यादा जो है वो डिफरेंस उसमें नहीं होना चाहिए, ठीक है। लाइक जो है अगर हमारे पास 10 रुपीज़ का नोट है और 500 का नोट है, तो वो उसमें बहुत डिफरेंस है, ग्रीन और जो है लाइट ग्रीन, तो वो आसानी से हम पहचान सकते हैं कि वट नोट वी आर यूजिंग, ओके। क्योंकि हमारे यहाँ आबादी का एक बहुत बड़ा हिस्सा, मैंने पहले भी कहा कि इलिटरेट है, तो बहुत सारे लोग हैं जो कि पढ़ नहीं सकते, लेकिन करेंसी नोट की पहचान जो है वो तकरीबन हर एक को होती है, ओके। नेक्स्ट इज़ government support. The good money material must be supported by the government. The people accept even fiat money due to government support only. जो भी चीज़ हम मनी के तौर पे यूज़ करें, दैट मस्ट बी सपोर्टेड बाय गवर्नमेंट. वी नो दैट ऑन आवर पाकिस्तानी नोट वी हैव बैंक दौलत पाकिस्तान स्टैम्प होती है, ठीक है, यानी वो लिखा हुआ होता है उस पर कि जो है वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की इजाज़त से, स्टेट बैंक की परमिशन से जारी किया गया है, ठीक है। तो वो हमारे उस पर एक लीगल सपोर्ट है, अदरवाइज इट इज़ जस्ट अ पीस ऑफ पेपर. लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि दीज डेज वी आर यूजिंग द करेंसी विच इज़ अ फियाट मनी. फियाट मनी का मतलब है कि जिसकी बैक पे किसी किस्म का कोई गोल्ड या कोई वैल्यू नहीं, हम उसकी बेस पे कोई और चीज़ हम गोल्ड डिमांड नहीं कर सकते. पहले तो 100% गोल्ड की बैक होती थी ना, लेकिन अब ऐसा नहीं है. हम सिर्फ और सिर्फ अगर 1000 रुपीज़ का नोट है, उसको हम 1000 रुपीज़ एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो क्यों कर रहे हैं? इसलिए क्योंकि उसके ऊपर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की स्टैम्प है और हर कोई उस स्टैम्प को जो है रिकॉग्नाइज़ करता है, और हम कहीं भी उसको जो कॉन्फिडेंस के साथ एज 100 रुपीज़ नोट इस्तेमाल कर सकते हैं. ओके, सो दैट इज़ अनदर इम्पॉर्टेंट क्वालिटी. एंड नेक्स्ट इज़ डिफ़िकल्ट टू डुप्लिकेट. Good money is one which is difficult to duplicate. There should be no danger of fake issuance of money. जाली नोट ना बन सकता हो. नोट ऐसा हो, अगर आप लोगों को पता हो तो हर करेंसी नोट के अंदर जो है वो बहुत सारी डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ होती हैं, ठीक है. आम आदमियों को पता नहीं होती, लेकिन इतना तो हर एक को पता होता है कि आप किसी को जो है अगर कोई शॉप पे जाएं और उसको अगर आप 500 रुपीज़ का नोट दें, तो वो पहले उसको चेक, 5000 रुपीज़ का नोट दें तो वो उसको पहले चेक करते हैं. उसकी कॉर्नर वाली जो वो जो कॉर्नर जो होता है उसको थोड़ा सा अपनी फिंगर से रब करके चेक करते हैं. ओके, वो थोड़े से लिटिल बिट रफ होती है, ठीक है ना, उसके ऊपर, तो वो उसको चेक करते हैं. दैट इज़ अ साइन दैट इट इज़ अ रियल नोट और नॉट, ठीक है. फिर उसके बाद बीच में एक स्ट्रिप होती है जिस पे SBP लिखा हुआ होता है. उसके अलावा हर नोट में कुछ हिडन क्वालिटीज़ होती हैं. हर जगह के करेंसी नोट्स में हर एक में कुछ हिडन जो है वो उसमें प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो कि कुछ ऑफिशियल्स को पता होती हैं, जिसकी बेस पे वो जो है वो रियल और फेक मनी में जो है वो डिफरेंस जो है वो फाइंड आउट कर लेते हैं. तो जो भी चीज़ हम मनी के तौर पर यूज़ कर रहे हैं, दैट शुड नॉट ईजी टू डुप्लिकेट. उसकी आसानी से जो है वो डुप्लिकेट ना बन सकती हो, तभी वो जो है वो एक स्ट्रॉन्ग मनी या एक सक्सेसफुल मनी के तौर पे वो चीज़ जो है वो एक्सेप्ट होगी इकोनॉमी में. दीज आर द इम्पॉर्टेंट क्वालिटीज़ विच एनीथिंग, एनी कमोडिटी शुड पजेस टू बी अ गुड मनी इन एनी इकोनॉमी, ठीक है. तो यहाँ पे हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मनी का जो टॉपिक है वो यहाँ पे एंड हो गया, ठीक है. नाउ वी हैव टू मूव टूवर्ड्स द फंक्शन ऑफ द मनी, ठीक है. कैरेक्टरिस्टिक्स हमने कर ली, अब हम आते हैं फंक्शंस की तरफ. फंक्शंस ऑफ मनी को हम दो कैटेगरीज़ में जो है वो डिवाइड करते हैं, प्राइमरी फंक्शंस एंड सेकेंडरी फंक्शंस, ठीक है. कुछ जो है वो बेसिक फंक्शंस हैं, प्राइमरी फंक्शंस, और कुछ इसके सेकेंडरी फंक्शंस हैं. बेसिक फंक्शंस जो कि ईजी होते हैं, जो कि आम आदमी की समझ में आ जाओ. सेकेंडरी फंक्शंस जो कि थोड़ा सा जो है वो हायर लेवल के फंक्शंस हैं, ठीक है, जो कि गवर्नमेंट से रिलेट करते हैं. व्हाट आर द प्राइमरी फंक्शंस? मनी एक्ट एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, it act as a unit of account, it act as a standard for deferred payments, and act as a store of value. These four are the primary functions. And secondary functions are: it aid to specialization, production and trade, money facilitates to factors of production, money as tool of monetary management, and money as an instrument of making loans. Okay, so we will explain it, I will explain it to you वन बाय वन. फर्स्ट ऑफ ऑल द प्राइमरी फंक्शंस. प्राइमरी फंक्शंस में सबसे पहला क्या है हमारे पास? मनी एक्ट एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, जो हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं कि ये मीडियम ऑफ एक्सचेंज के तौर पे यूज़ होता है. बार्टर सिस्टम में जो हमारे पास मीडियम ऑफ एक्सचेंज नहीं था, हम कमोडिटीज़ को यूज़ करते थे. मनी ने उसको रिप्लेस किया और हम चीज़ों को जो है वो मनी के थ्रू जो है वो आपस में जो है एक्सचेंज करना शुरू हो जाए इंस्टेड ऑफ कमोडिटीज़,
ठीक है ना। मनी एक्ट एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज एंड हेल्प इन ओवरकमिंग द डिफिकल्टीज इन बार्टर सिस्टम। इसकी वजह से बार्टर सिस्टम की तमाम डिफिकल्टीज जो है वो हमने ओवरकम कर ली। ठीक है, नेक्स्ट फंक्शन इज मनी एज अ यूनिट ऑफ अकाउंट। यूनिट ऑफ अकाउंट दैट मीन्स वी कैन मेजर ईच एंड एवरीथिंग इन टूडेज इकोनॉमी इन टर्म्स ऑफ मनी। ठीक है, आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत होती है तो हम क्या करते हैं कि सबसे पहले उसकी प्राइस टैग देखते हैं, उसका प्राइस देखते हैं। हर चीज़ को हम मनी की टर्म्स में मेजर कर सकते हैं। ठीक है, जिस तरह लेंथ हमें चाहिए होती है तो उसके लिए हमारे पास मीटर सेंटीमीटर का यूनिट है। अगर आपको वेट चाहिए होता है तो ग्राम और किलोग्राम का यूनिट। इस तरह किसी भी कमोडिटी की मेजरमेंट के लिए हमारे पास क्या है, उसकी प्राइस या मनी हमारे पास मौजूद है। मनी सर्व्स एज अ कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू, दैट इज द वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ यूनिट ऑफ मनी। और इसकी वजह से हम चीज़ों को कंपेयर कर सकते हैं कि अगर हमें जो है वो कोल्ड ड्रिंक लेनी तो पेप्सी लें या कोक लें, तो व्हाट इज़ द डिफरेंस इन देयर प्राइस, उसकी बेस पे हम उसको कैटेगराइज करते हैं कि विच वन इज़ सूटेबल फॉर अस। ठीक है, सो वी हैव अ कॉमन वैल्यू ऑन द बेसिस ऑफ विच वी कैन कैटेगराइज एनी कमोडिटी। नेक्स्ट इज मनी एज अ स्टैंडर्ड फॉर डेफर्ड पेमेंट्स। मैंने लास्ट टाइम भी आपको बताया था कि हम बहुत सारी ट्रांजेक्शन्स ऐसी करते हैं जिसकी हम पेमेंट फ़ौरन नहीं करते बल्कि डिलेड पेमेंट्स होती हैं। हम लोन लेते हैं, हम हाउस लोन लेते हैं, कार्ड ऑटोमोबाइल्स के ऑटोज़ के लिए जो है वो लोन लेते हैं, डिफरेंट पर्पसेस के लिए जो लोन ले रहे होते हैं, या फिर हम जो है कुछ फ्यूचर ट्रांजेक्शन्स कर रहे होते हैं, फ्यूचर पेमेंट की बेस पे ट्रांजेक्शन्स कर रहे होते हैं। ठीक है, तो उन सब के लिए अगर मनी मौजूद ना हो, कोई भी और चीज़ हम कमोडिटी यूज़ कर रहे हो मनी के तौर पे, तो वो जो है हमारे लिए ईजी नहीं होता। मनी क्योंकि स्टोर ऑफ वैल्यू होता है, उसकी वैल्यू जो है वो स्टेबल रहती है, तो हम मनी की बेस पे जो है लोग 20-20 साल के लिए घरों को लीज़ करा लेते हैं। ठीक है, शॉप्स लीज़ करा लेते हैं, गाड़ियाँ ले लेते हैं, 5-5, 6-6 साल के लिए लीज़ करा के लीज़ पे निकलवाते हैं। तो वो जो है एक स्टैंडर्ड फिक्स होता है, फार्मूला होता है, उनका जो एक बाकायदा परसेंटेज होती है, और उसकी टर्म्स पे हम जो है वो 7 ईयर्स तक या 8 ईयर्स तक या 20 ईयर्स तक हम उसकी पेमेंट जो है वो करते रहते हैं। ठीक है, तो मनी इज़ यूज टू मेक पेमेंट्स इन फ्यूचर टाइम। मनी इज़ द ओनली यूनिट ऑफ अकाउंट विच इज़ ईजी टू बोरो एंड ईजी टू लैंड। ये आसानी से हम इसकी बेस पे बोरोइंग भी कर सकते हैं और लैंडिंग भी कर सकते हैं। नेक्स्ट इज़ मनी एज अ स्टोर ऑफ वैल्यू। वैल्यू इसकी क्या रहती है, स्टोर रहती है। तमाम के तमाम चीज़ों को हम जो है इसलिए मनी की टर्म्स में मेजर करते हैं, और ये जो मोस्ट लिक्विड ऑफ ऑल एसेट्स है, इसलिए इसकी वैल्यू मैंने आपको बताया ना कि 100 रुपये का नोट अगर आप रख दें अपने पर्स में और भूल जाएं, तो अगर वो 5 साल बाद भी निकलेगा, दैट विल रिमेन द 100 रुपीज़ नोट। ठीक है, उसकी वैल्यू में फ़र्क नहीं आएगा। हाँ, उसकी परचेजिंग पावर डेफिनेटली कम हो जाएगी कि अगर आप अभी 100 रुपये से अगर 10 चीज़ें खरीद रहे हैं, देन इन फ्यूचर आफ्टर 5 years मे बी यू आर नॉट एबल टू बाय अ सिंगल प्रोडक्ट विद द हेल्प ऑफ दीज 100 रुपीज़। ठीक है, बट द फेस वैल्यू ऑफ दैट मनी इज स्टिल 100 रुपीज़। ठीक है ना, मनी इज ऑल्सो फंक्शन एज अ स्टोर ऑफ वैल्यू। मनी इज द मोस्ट लिक्विड ऑफ ऑल एसेट, देयरफॉर इट इज़ ईजिली टू स्टोर वैल्यूज़ इन फॉर्म ऑफ मनी। ठीक है, एंड देन these are the primary functions. Now we move towards the secondary function which are a little bit higher level functions. ठीक है, जिसमें गवर्नमेंट इन्वॉल्व होती है, वो तो आम इंडिविजुअल्स के लिए थे। अब हम आ जाते हैं सेकेंडरी फंक्शंस की तरफ। सेकेंडरी फंक्शन में फर्स्ट वन इज एड टू प्रोडक्शन एंड ट्रेड। द मार्केट मैकेनिज्म, प्रोडक्शन ऑफ कमोडिटीज़ एंड एक्सपेंशन ऑफ ट्रेड एट्सेट्रा हैव ऑल बीन फैसिलिटेटेड बाय द यूज़ ऑफ मनी। जितनी भी प्रोडक्शन है, जितनी भी ट्रेड है, जितनी भी स्पेशलाइजेशन है, सब कुछ पैसे का खेल है। पैसा आपके हाथ में है, आप जितनी चाहें प्रोडक्शन कर सकते हैं, आप जितनी चाहें ट्रेड कर सकते हैं, आप इंपोर्ट कर सकते हैं, आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हर चीज़ के लिए पैसा चाहिए। आप इन्वेस्टमेंट आपके पास मौजूद है, मौजूद नहीं है, आप बैंक से जाएंगे, लोन लेंगे, लोन लेके जो है आप कोई भी बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। एवरीथिंग इज़ फैसिलिटेटेड बाय मनी। प्रोडक्शन, इकोनॉमी रन करने के लिए प्रोडक्शन की ज़रूरत है। प्रोडक्शन किसकी बेस पे होती है, मनी की बेस पे। आपके हाथ में पैसा है तो आप कोई भी बिजनेस जो है वो अपना स्टार्ट कर सकते हैं। दैट इज़ द फर्स्ट सेकेंडरी फंक्शन ऑफ money. The next is money facilitate to factors of production. Factors of production, we know that we have 4 factors of production: land, labor, capital and entrepreneur. ठीक है, all productions take place for the market and factor payment, rent, wages, interest and profit are made in money. प्रोडक्शन करनी है, जो भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आप हायर कर रहे हैं, 4 मेन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, उनकी प्राइसेस है। लैंड की प्राइस हमारे पास जो है वो रेंट है, लेबर की प्राइस वेजेस है, जो हमारे पास जो है कैपिटल की प्राइस इंटरेस्ट है, और एंटरप्रेन्योर की प्राइस जो है वो प्रॉफिट्स होती है। इन तमाम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की पेमेंट जो है वो इन टर्म्स ऑफ मनी ही होती है। आप किसी को भी हायर करते हैं काम के लिए, कुछ प्रोड्यूस करने के लिए, तो आपको क्या करना होता है, उसको पेमेंट करनी होती है, जो कि सिर्फ और सिर्फ मनी की फॉर्म में ही हो सकती है। ओके, नेक्स्ट इज
मनी एज अ टूल ऑफ मॉनेटरी मैनेजमेंट। पूरी कंट्री का जो मॉनेटरी सिस्टम है, मॉनेटरी सिस्टम एनीथिंग विच इज़ रिलेटेड विद मनी, कितना बैंकों को लोन देना है, बैंक्स को कितना लोन लेना है, कितने टैक्सेस लगाने हैं लोगों पे, कितना जो है वो इकोनॉमी में मनी सप्लाई करनी है, मनी डिमांड कितनी हो रही है, वट एवर मॉनेटरी सिस्टम, स्टेट बैंक को इंटरेस्ट रेट क्या फिक्स करना है, सारी की सारी चीज़ें जो आपके पास जो फॉरेन एक्सचेंज रेट है वो क्या होना है, ईच एंड एवरीथिंग रिलेटेड टू मनी इज़ ऑक्यूपाइड इज़ एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ मॉनेटरी मैनेजमेंट। ठीक है, तो मॉनेटरी मैनेजमेंट पूरे मुल्क का जो मॉनेटरी सिस्टम है दैट इज़ डन बाय मनी। मनी इकोनॉमी में कितना मौजूद है उसी बेस पे हम पूरा अपना मॉनेटरी पॉलिसी या मॉनेटरी सिस्टम जो है वो बनाते हैं। द मॉनेटरी प्रोग्रेस इन इकोनॉमी इज़ डन ड्यू टू मनी। पैसा जितना मौजूद है उसी हिसाब से हम अपना मॉनेटरी सिस्टम जो है वो मैनेज करते हैं। एंड द लास्ट वन इज़ मनी एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ मेकिंग लोन्स। हम लोन देने के लिए, अभी मैंने पीछे बताया आपको, डेफर्ड पेमेंट्स, ठीक है, डेफर्ड पेमेंट्स। देखें इकोनॉमी में जो है सिस्टम जो चल रहा होता है वो सारा का सारा बैंक्स जो होते हैं वो क्या कर रहे होते हैं, वो इन्वेस्टमेंट जनरेट कर रहे होते हैं। हम जो उनके पास सेविंग करवाते हैं वो इन्वेस्टमेंट जो है वो वहाँ से जनरेट होती है, उस सेविंग को वो फर्दर इन्वेस्टमेंट के लिए यूज़ करते हैं और फिर वो जो है वहाँ से उनको इंटरेस्ट रेट मिलता है और उसकी बेस पे जो है वो लोन जो है लोन प्रोवाइड करते हैं लोगों को, फिर उनको वहाँ से इंटरेस्ट मिलता है और वो उस बेस पे जो पूरा का पूरा बैंकिंग सिस्टम जो है वो चल रहा होता है। तो मनी हमारे पास एक ऐसा टूल है जो कि ये पूरा इकोनॉमी का सिस्टम जो है वो चला रही होती है। किस तरह से हमें इन्वेस्टमेंट करनी, किस तरह से हमें सेविंग करनी, कितना हमें लोन्स देने हैं, सारा का सारा जो बिजनेसमैन और इंडस्ट्रियलिस्ट जो है वो पूरा का पूरा जो है वो ये पूरा सिस्टम जो उनका चल रहा होता है, प्रोडक्शन का, इन्वेस्टमेंट का, सेविंग का, वो ऑल दैट डिपेंड्स ओनली ऑन money. People save money and deposit it in bank. The bank advance these savings to businessmen and industrialists. Thus money is the instrument by which savings are transferred into investment. अगर हमारे पास मनी ना हो तो हम ये पूरा सेविंग और इन्वेस्टमेंट का जो साइकिल है इसको कंप्लीट नहीं कर सकें। तो आई थिंक बाय अंडरस्टैंडिंग ऑल दीज पॉइंट्स नाउ यू, ऐसे तो हमें पता ही है कि इम्पॉर्टेंट जो है वो कितना है मनी हमारे लिए, पैसे की अहमियत से कोई इनकार नहीं करता, लेकिन ऑन द बेसिस ऑफ दिस एक्सप्लेनेशन विच आई हैव गिवन यू इन दिस लेक्चर, यू आर एबल टू फाइंड आउट दैट हाउ मच मनी इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर एनी इकोनॉमिक सिस्टम। किसी भी इकोनॉमी को रन करने के लिए कितना ज़्यादा जो है वो मनी इम्पॉर्टेंट है, ये इस लेक्चर से आई थिंक कि आपके लिए जो है वो क्लियर हो गया होगा। ठीक है, आई होप यू गेट इट वट एवर आई एक्सप्लेन्ड इन टुडेज़ लेक्चर। ठीक है, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू। इफ़ एनी क्यूरीज यू कैन कॉन्टैक्ट मी। Okay, thanks a lot. Allah Hafiz.